continue our coverage over the doctors' protests and their demands for justice after the heinous crime at the RG Kar Medical Hospital in Kolkata. Over the last week or so, resident doctors from AIIMS and other hospitals in the national capital and across the country have been staging protests. They have suspended OPD services, ensuring that emergency services are still available. Now, that's today, these doctors are providing OPD services from in front of the Health Ministry at the Nirman Bhavan in the national capital. The free service will be provided till they are assured of adequate security in hospitals through a Central Protection Act. Residents, doctors are available for providing elective OPD services of around 36 specialities, including medicine, surgery, OBS, gynae, pediatrics, ophthalmology, orthopedics, as well as others, to patients who are gathered outside the Nirman Bhavan. Emergency services will continue as before at the hospitals. Meanwhile, the Residents Doctor Association has written to the Prime Minister seeking his intervention in enacting a central law via an ordinance to protect healthcare workers and institutions across the nation. The RDA has urged for the restoration of law and order at the RG Kar Medical College and Hospital on an immediate basis. Of course, amongst the demands that have been put forth by the doctors include enhanced security as well, especially with regards to the deployment of police personnel for the safety, as well as the deployment of functional CCTVs in particular after the lapses at the RG Kar Medical Hospital have come to light. Even as we are tracking developments from the national capital, a lot is happening in Kolkata as well. A three-member CBI team has reached the RG Kar Medical Hospital. We are, of course, tracking the fact that they are conducting a 3D scanning of the crime scene in order to gauge what exactly transpired that night. They are also grilling the former principal of the RG Kar Medical College, Dr. Sandeep Ghosh. He has just arrived at the CBI office in Kolkata for questioning. They questioned him for 10 hours on Friday, 13 on Saturday, and nearly 12 yesterday as well. And this is the fourth day that they are grilling the principal. They're trying to find out who exactly delivered him the news of the fate of the poor victim. They're also trying to gauge whether he had any conversation with the current principal or not. They're trying to gauge how his conversations are by tapping into his phone as well. With us on the broadcast, my colleague Rainik Datta reporting to us live from West Bengal. Rainik, you've been outside the RG Kar Hospital at Kolkata. What's taking place? देखिए, RG Kar मेडिकल कॉलेज में सीबीआई का एक स्पेशल टीम वो आज भी पहुंचा है, क्योंकि लगातार 3 दिन से दिखाई दे रहा था कि सीबीआई की तरफ से RG Kar मेडिकल कॉलेज के अंदर में, RG Kar मेडिकल कॉलेज का बाहर इमरजेंसी वार्ड में 3D स्कैनिंग का जो प्रक्रिया वो किया जा रहा है। वो 3D स्कैनिंग करने के लिए आज भी जो सीबीआई का टीम वो पहुंचे है। सीबीआई का ये जो एक्सपर्टाइज टीम है, इनकी तरफ से ये 3D मॉडल तैयार किया जा रहा है कि RG Kar मेडिकल कॉलेज में उस रात में कौन से जगह से वो लोग आए थे। RG Kar मेडिकल कॉलेज का बहुत सारे एंट्री और एग्जिट गेट है और इसी वजह से सीबीआई को 4 दिन लग रहा है ये पूरा 3D स्कैनिंग करने के लिए। और ये जो थर्ड फ्लोर है, जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ है, यानी प्लेस ऑफ ऑकरेंस, उस जगह में 3 गेट है। उस सेमिनार हॉल के अंदर 3 गेट है और इसी वजह से हर एक गेट का जो एग्जिट पॉइंट, वो एग्जिट पॉइंट का 3D स्कैनिंग सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर सीबीआई की तरफ से 3D स्कैनिंग के माध्यम से ये तैयार किया जा रहा है कि यानी फ्राइडे रात को क्या घटना घटा था वो देखने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई का और एक टीम की तरफ से RG Kar मेडिकल कॉलेज का जो एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, उनको पूछताछ किया जा रहा है। लगातार 4 दिन, आज भी सुबह उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वो सीबीआई ऑफिस में आ पहुंचे। कल भी रात तक उनको पूछताछ किया गया था। एक पहला दिन 10 घंटा, उसके बाद 15 घंटा, लगातार ये 4 दिन उनको पूछताछ का प्रक्रिया चल रहा है, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर्स के पास बहुत सारी
इंफॉर्मेशन है जिसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये संदीप घोष को बुलाया जा रहा है। संदीप घोष का नाम बार बार से व्यक्ति परिवार की तरफ से भी दिया गया था, संजय रॉय की तरफ से भी दिया गया था, और उसके साथ साथ जैसे कि सीबीआई की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रहा है कि संदीप घोष का नाम, जो भी बयान जिनका रिकॉर्ड किया गया है, 10 लोगों का बयान रिकॉर्ड किया गया है, उनके मैक्सिमम लोगों के पास से ही संदीप घोष का नाम आया था। और संदीप घोष उस कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल है, और जिस दिन ये घटना घटा था वो उसी टाइप का प्रिंसिपल था, और इसी वजह से संदीप घोष को पूछताछ करना और संदीप घोष के साथ ये जो विक्टिम है इनका कोई परिचय था कि नहीं, इनके साथ बातचीत होता कि नहीं, जब ये कब वो उनके पास इंफॉर्मेशन आया था, किस तरीके से इंफॉर्मेशन आया था, फैमिली को कौन फोन किए थे, इस तरीके का जो सवाल ये संदीप घोष को पूछा जा रहा है। और संदीप घोष का जो मोबाइल फोन, वो मोबाइल डेटा भी सीबीआई का रेडर में है। यानी सीबीआई की तरफ से ये देखा जा रहा है कि संदीप घोष का जो कॉल डिटेल्स छाना जाएगा कि संदीप घोष जिस टाइम में ये पूरा घटना घटा था उसके बाद किसको संदीप घोष की तरफ से कॉल किया गया था, या तो संदीप घोष के पास किसका फोन कॉल आया था। और एक सवाल सीबीआई के मन में है कि ये जो पूरा घटना घटने का 6 घंटे बाद क्यों पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस को एफआईआर दायर किया गया, ये सवाल भी सीबीआई के पास आ रहा है कि हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से इतना देरी क्यों लगा पुलिस को मेल करने के लिए, और पुलिस को ये जो एफआईआर का जो कॉपी मेल करने में इतना समय क्यों लगा। ये भी पूछताछ का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में संदीप घोष का रहेगा, ऐसा सीबीआई के सोर्सेस के माध्यम से मालूम पड़ रहा है। दूसरी तरफ संदीप घोष को पूछताछ 3D स्कैनिंग का प्रक्रिया जब चल रहा है, उसी टाइम में ये जो संजय रॉय जो मेन एक्टर है, इनका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ये करना सीबीआई की तरफ से चालू कर दिया गया है। संजय रॉय का मानसिक स्थिति कैसा है, वो किस कारण से इस तरीके की हरकत किया, वो जो बयान दे रहा है वो सही है कि नहीं, ये जानने के लिए उनका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट वो सीबीआई के जो स्पेशल टीम है, दो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है, उनकी तरफ से किया जा रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.